फिर सब लोग मुझे बोलने लगे, पीपल लाइक शंकर महादेवन जी, पीपल लाइक श्रेया घोषाल टोल्ड मी व्हाट अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट एंड व्हाट अ वंडरफुल नेम, इसको आप जारी रखो। दूरदर्शन का ट्यून विच इज सारे जहाँ से अच्छा, ये सिग्नेचर बन गया था। तो ये शहनाई वगैरह इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स में बज रहा है इन अ बैंड फॉर्मेट। ये तो कब का है? जाकिर हुसैन, जो कि ही इज सिनोनिमस विद द वर्ड फ्यूजन और द वर्ड ग्लोबल म्यूजिक और वर्ल्ड म्यूजिक। इनका जो बैंड है शक्ति, जिस बैंड को इस साल ग्रैमी मिला, ग्रैमी से नवाजा गया है, बट दे शुड हैव गॉटन इट 10 years ago बिकॉज इन लोगों ने चालू किया जो राह से हम लोग गुजर रहे हैं अभी, वो इन लोगों ने दिखाया। सो इट्स योर द आइडिया इज नॉट टू क्रिएट 1.5 minutes packaged with everything you know, right, but to have 10, 15, 20 seconds of magic. I don't think I'm a pioneer at all. I am just trying to do what my heart says. But I think this work of opening the doors has been started by legends like उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर। हम लोग सिर्फ उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और कुछ नहीं। मेरा सवाल सिर्फ यही होता है कि आपने रील में जो गाया बजाया जो भी किया वो 1.5 मिनट में ही करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे सामने बैठ के भी करो। सो बोला गया पारेगा, ये कल्याण है, ये रहा ग्रामर। तो अगर आप इतने गर्व के साथ, जो कि अच्छी बात है, गर्व के साथ अपना देश, अपना धर्म सब इतना फैला के दिखा रहे, तो अपना जो संस्कृति है या जो संगीत है उसको भी दिखाना चाहिए। बिजनेस से लेके, प्रोडक्शन से लेके, पोस्ट प्रोडक्शन से लेके, एडिटिंग, मेलोडाइन और यूजिंग प्लगइन्स, सब कुछ के बारे में जानकारी ज़रूरी है। Hi everyone, this is Ananya and today I'm in conversation with a very special guest. We have one of the biggest sitar maestros of our time, Mr. Purbayan Chatterjee. He is known for his most experimental and most innovative approaches towards his sitar instrument, and we'll ask him around how does he do all those things that nobody else is able to do. One of the most unique approaches towards sitar that I've ever seen. So welcome Purbayan sir. Thank you very much and thank you for having me on your show. Yeah, thank you so much. So first of all, tell me, you have a concert coming up tomorrow with Shivamani sir, and the name is Classic Cool. So I want to know more about how did that name come up? Classical से Classic Cool कैसे बना? तो बेसिकली ये जो बैंड है, बैंड का नाम है क्लासिक कूल, और ये नाम तकरीबन आई थिंक 11-12 साल पहले हम लोगों ने सोचा। A whole bunch of us were brainstorming about trying to create a hashtag actually. तब वो जो ज़माना था, तब hashtag नया आया था। So 12 साल पहले? 12 साल भी नहीं, I think it was like 11 years or so. I think 11 years, actually 11 years ago. और hashtags तब नए थे. Hashtags were just a thing, and I was signed to this company called QKey, which is owned by A.R. Rahman Saab and Shekhar Kapoor ji and the late Samir Bangara, who I have worked with QKey in fact. Okay. Last so year I was then we working have with them. common friends. Yeah. Yeah. So Lakshmi, there was this girl called Lakshmi who used to manage me from QKey. Okay. And Sagar and sir, Samir were all good friends of mine. तो उस वक्त हम लोग सोच रहे थे कि एक हैशटैग ऐसा बनाया जाए which speaks to both what is traditional and what is contemporary, which speaks to the whole sense of maintaining something which is pure, maintaining something which has been passed down to us, but also gives us the opportunity of creating something new. Okay. तो उस वक्त हमने क्लासिक कूल नाम सोचा, उसके बाद हम लोगों ने उसको लॉन्च किया, एंड वी हैड सम ग्रेट म्यूजिशियंस, राकेश चौरसिया, वी हैड जीनो बैंक्स ऑन द ड्रम्स। उस वक्त एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाए गए थे which we made a classic cool channel and we shot it really nicely, and but it was not really a band, and we did a concert at St. Andrews Auditorium here in Bombay to launch it, and Pandit Hari Prasad Chaurasia ji was there, Shekhar Kapoor ji was there, like industry से बहुत सारे लोग आए थे। My friend Naya Budhas, who is the daughter of late Pankaj Udhas ji, जो अभी चले गए, she helped us put the show together. तो ऐसे ही वो सफ़र चालू हुआ। फिर सब लोग मुझे बोलने लगे, people like शंकर महादेवन जी, people like श्रेया घोषाल told me what a wonderful concept and what a wonderful name, इसको आप जारी रखो। तो in the coming years, Shankar ji came as a guest, and Shankar ji performed for us in Nehru Center. So it became a movement. So then it started slowly becoming from a movement into a band.
So Sangeet Haldipur joined us. Okay. Ojas Adhia joined us. And Nayab was always at the forefront of putting the shows together. So we started doing a whole bunch of shows. और धीरे धीरे उस वक्त उन दिनों मेरा एक दूसरा बैंड था स्ट्रिंग स्ट्रक करके. Okay. So I used to do string struck concerts all over the world and Shankar ji performed for string struck also. उसका एक एल्बम भी है string struck करके. तो धीरे धीरे क्या हुआ, string struck में बहुत सारे strings like live violins, violas, cellos, वो change होके classical to a smaller outfit classical, happened. That it is right now. And that it is right now. उसके बाद पिछले साल हम लोगों ने इसको relaunch किया in the form of an album, actually in the form of an EP. With 4 songs where we got a new feel to the band. We still have Sangeet, we have Ojas, but we now have Shikhar Nath, who is the son of Tawfiq Qureshi ji, the brother of Ustad Zakir Hussain Saab, and son of Ustad Alara Khaqa Saab. And his son Shikhar is a very able percussionist and he's joined the band. So ये हो गया core band. And sometimes we invite guest artists. Like we have had Shankar ji, he's kindly agreed to come. So this time for the show tomorrow at the Grand Theatre at the Nita Mukesh Ambani Cultural Center, Sivamani ji, you Rajesh and my wife Gayatri have agreed to join as guest artists. For the first time? For the first time, Sivamani ji. Okay. You Rajesh ji has played with us before. And of course my wife, वो तो घर की बात है. तो बीच में हो चुका है एक आध बार. Okay. So see, I have recently shifted to Mumbai and I have attended a lot of pure classical concerts. तो जिसमें कि हम मैं भी सीख रही हूँ, तो जो हमारा एक गुरु जी सिखाते हैं एंड गुरु शिष्य परंपरा होती है, तो उसमें यूजुअली ऐसा कल्चर नहीं होता है कि हम फ्यूजन करें या बैंड अपना बना लें या फिर अलग अलग अप्रोचेस के साथ एक्सपेरिमेंट करें. इट्स नॉट वेरी एक्सपेरिमेंटल, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड एंड आई हैव सीन. बट आप भी उसी परंपरा से ही आए हैं, यू हैव लर्न फ्रॉम योर फादर. सो आपको ये क्या बोलते ये रिबेलियस आइडिया कैसे आया कि आप करेंगे फ्यूजन? बल्कि मैं तो मानता हूँ कि इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ आवर म्यूज़िक ना, ये कुछ रिबेलियन नहीं है, ये सिलसिला बहुत दिन से जारी है. आप देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का मैहर बैंड था, आपको मालूम है कि नहीं? मैहर इट्स अ घराना. मैहर इज़ अ घराना एंड मैहर इज़ अ प्लेस ऑल्सो इन नियर इलाहाबाद in Madhya Pradesh and Satna, and that is where our gharana comes from. Ustad Alauddin Khan Sahab is the founder, Pandit Ravi Shankar ji, Ustad Ali Akbar Khan Sahab, Nikhil Banerjee. It is one of the most hallowed and respected and well known gharanas in instrumental music for sure. पर उसमें अलाउद्दीन खान साहब का ट्रेनिंग या अलाउद्दीन खान साहब का सोच इतना मॉडर्न था कि उन्होंने एक मैहर बैंड बनाया. अच्छा. जिसमें उन्होंने कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 इंस्ट्रूमेंट्स साथ में बजवाया. तो ये आप सोचिए ये कब की बात है? आई एम टॉकिंग अबाउट द 50s, 60s. That must be first of its kind. अभी पंडित रविशंकर जी ने सुगम संगीत जो ऑल इंडिया रेडियो में चालू करवाया, उसमें यही तो होता था, बैंड्स. एंड दैट इज़ वेयर वी हैव, इफ़ यू रिमेंबर दैट दूरदर्शन का ट्यून विच इज़ सारे जहाँ से अच्छा, ये सिग्नेचर बन गया था. तो ये शहनाई वगैरह इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स में बज रहा है इन अ बैंड फॉर्मेट. ये तो कब का है? अच्छा, उसके बाद आप देखिए जो काम पंडित रविशंकर जी ने यूदी मेनन साहब के साथ किया, जो काम जॉर्ज हैरिसन के साथ किया, इन्होंने ही तो राह दिखाया. उसके बाद उस्ताद जाकिर हुसैन, जो कि ही इज सिनोनिमस विद द वर्ड फ्यूजन और द वर्ड ग्लोबल म्यूजिक और वर्ल्ड म्यूजिक. इनका जो बैंड है शक्ति, जिस बैंड को इस साल ग्रैमी मिला, ग्रैमी से नवाजा गया है, और हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि एक इंडियन, बट दे शुड हैव गॉटन इट 10 years ago बिकॉज इन लोगों ने चालू किया जो राह से हम लोग गुजर रहे हैं अभी, वो इन लोगों ने दिखाया. सो इट्स नॉट अ रिबेलियन ऑफ एनी काइंड, इट इज़ जस्ट दैट. मैं आपको बताऊं, लोगों का कभी कभी जो नज़रिया होता है ना, वो बहुत ही मायोपिक और बहुत ही एक वन ट्रैक माइंड होता है. तो इसी से एक परसेप्शन कभी कभी बन जाता है कि शास्त्रीय संगीत यानी एक बुढ़ा आदमी आके बैठेगा, सफ़ेद बाल, और वो हर बात पे अपने स्टूडेंट्स को बोलेंगे ये मत करो, वो मत करो. पर एक गुरु का काम जितना होता है कि ये मत करो, वो मत करो, उतना ही होता है कि ये करो और वो करो. तो ये परसेप्शन, आई थिंक इट्स maybe it's a lacune in marketing. Maybe some people somewhere down the line got the marketing of the image of Shastriya Sangeet wrong,
and because our शास्त्रीय संगीत is very cool and हम क्लासिक कूल से वही बोलना चाहते हैं कि इट इज़ वेरी कूल, इट्स वेरी कूल टू बी योरसेल्फ। आजकल के जो बच्चे हैं जो आ रहे हैं उनका टैलेंट ना सिर्फ शास्त्रीय संगीत में सितार सरोद में है, बल्कि जितने लोग सरोद बजाते हैं वो लोग गिटार भी बजाते हैं। Right. तो सरोद में दे आर ब्रिंगिंग गिटार टेक्निक्स, सितार में गिटार टेक्निक्स, फ्लूट वाले जैसे मेरे कोलीग माय एल्डर ब्रदर राकेश चौरसिया, जिनको भी ग्रैमी से नवाजा गया इस बार, he has been playing in film industry for so many years. His uncle Pandit Hariprasad Chaurasia ji, as you know, is one of the doyens. और उन्होंने क्या क्या रास्ता दिखाया हरी जी ने, और उसके बाद राकेश भाई ने भी अपना रास्ता निकाला। He has played with so many kinds of music. तो क्यों नहीं? So yeah, I was coming to that question. When it comes to youngsters, जब हम legacy pass on करते हैं, तो is it necessary कि हम उसको cool बना के ही pass on करें? Like I'm just asking a counter question कि why is it necessary कि हम उसको फ्यूजन बनाकर ही एक्सेप्टेबल बनाएं? प्योर फॉर्म में एक्सेप्टेबल बनाना मुश्किल क्यों है आज की जनरेशन के लिए? प्योर मतलब क्या है? प्योर मतलब कि पुराने स्टाइल में अगर हम सिर्फ एक राग का प्रेजेंटेशन करें। अब आज जो पुराना है, आज जो नया है, कल वो पुराना होने वाला है, पुराना हो जाएगा, राइट? करेक्ट। सो इट्स जस्ट इवॉल्विंग विद टाइम। आज जो प्योर है वो कल डाइल्यूट होने वाला है। डाइल्यूट इज़ नॉट अ बैड थिंग। हम लोग जब कहीं पे एक नया कंकॉक्शन बनता है, इट बिकम्स अ थिंग इन इटसेल्फ। अब देखिए ये जो साज है सितार, ठीक है, इसका ओरिजिनल मदर साज इज़ वीणा, राइट? करेक्ट। तो अगर हम प्योरिटी के चक्कर में अभी तक वीणा ही बजाते तो ये जो नई खूबसूरती है ये अधूरा रह जाता। तो इट्स लाइक इवॉल्विंग। तो ये कैसे बना? टू कल्चर्स कोलाइड। अब उसमें सोशियो पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। अब इंडिया का जो हिस्ट्री है उसको स्टडी करना पड़ेगा। जैसे अपना अमीर खुसरू, जो पर्शियन इन्फ्लुएंस आया अपने देश में, खाने में, आर्किटेक्चर में, ताजमहल बना ही उसी वजह से। अपना जो शास्त्रीय संगीत का जो स्वरूप हम आजकल जानते हैं, दैट इज़ बीन मेड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज सम पीपल केम फ्रॉम सम अदर कल्चर। गुड बैड उसका पॉलिटिकल इफेक्ट्स वी आर नॉट गेटिंग इनटू, दैट्स अनदर थिंग। बट इफ़ यू डोंट लेट पीपल ऑफ टू कल्चर्स कम टुगेदर, मीट। अभी हम जो खाना खाते हैं इधर, द इवन फॉरगेट like Chinese or Japanese, those are other cuisines. But even within Indian cuisine, because the British came here, there are so many things which have like, we have this thing called Mughlai paratha. Yeah. I don't know if you're aware of it. Yeah. ये मुगलाई पराठा क्यों बोला जाता है इसको? ये मुगल्स के टाइम पे जिस एक विथ दे यूज्ड टू मेक विथ मिंस मीट एक पराठा, उसको ब्रिटिश ने मुगलाई पराठा नाम से किया। सो अब देखिए क्या क्या इन्फ्लुएंस है। हाँ. अब देखिए अपना जो योगा है, जो हम लोग आजकल बोलते हैं हॉट योगा और हठ योगा, अलग अलग, देन देयर इज सो मेनी काइंड्स ऑफ योगा एंड इट इज बिकम सच अ कूल थिंग इन द वर्ल्ड। अब ये कूल ओरिजिनल ही है। ये अब जो वट एवर वी आर डूइंग, वी आर प्लेइंग रागा बेस्ड म्यूजिक ओनली। वेन एवर वी आर experimenting within a raga. Whatever we are doing, whether it is in classical or any other form of music, we are experimenting within the raga. First of all, we are trying to see कि इसके जो parameters है, boundaries है, वो boundaries के अंदर क्या कर सकते हैं। फिर हम क्या देख रहे हैं? Now we are seeing if we go outside the boundary and look at it from the outside. But फिर भी हम लोग राग ही देख रहे हैं। अब जो हमारा कंट्री है भारत, आप भारत को मुंबई की ज़मीन पे बैठ के देखे या आसमान से देखे, लेकिन है तो भारत ही ना। तो हम लोग ज़रा आसमान से देख रहे हैं। That's all it is. Very nice. So it's just that you are being a pioneer of a change. मतलब कभी ना कभी तो वो फेस चेंज होगा ना म्यूजिक का। I don't think I'm a pioneer at all. I am just trying to do what my heart says. But I think this work of opening the doors has been started by legends like Ustad Zakir Hussain, Pandit Ravi Shankar. हम लोग सिर्फ उनके पीछे चल रहे हैं और कुछ नहीं। Right. And anybody who claims to be a pioneer in anything actually is because इस दुनिया में सब कुछ हो चुका है। अब देखिए सितार जो साज है, ये इसमें इतना सारा मॉडिफिकेशन हुआ है, इतना वीणा या मैंडोलिन में इलेक्ट्रिफिकेशन करके कब से बज रहा है। आपने भी किया है मॉडिफिकेशन? मैंने मॉडिफिकेशन एक अपने हिसाब से एक आध चीज़ सोचा है। मैंने बेल्जियम में मेरा एक फ्रेंड है, उसको मैंने
बहुत साल पहले बोला था कि भाई मेरे को एक बना के दो, एक समथिंग विच लुक्स गुड, आई वांट समथिंग, सो वी गॉट द ट्रांसपेरेंट सितार. आई मेड अनदर सितार many years ago, दो which I'll be playing tomorrow. I'm revisiting it now. उसमें that's got like two pickups, one neck and one bridge pickup, and I can flip between the pickups and get various sounds, you know. So I had made this about a decade ago, and I'm going to be playing it at the Grand Theatre tomorrow. वाओ. सो ये सब एक्सपेरिमेंट्स करते हुए कभी कोई और इंस्ट्रूमेंट आपको अपील नहीं किया कि सितार के अलावा कुछ और बजाए? भी प्लेड गिटार? अब अपील बहुत किया है. गिटार का एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, आप देख सकते हैं ये जो मार्क है ना, सितार का ये जो एक मार्क है, ये निशाना बन जाता है, यू आर ब्रांडेड विद दिस. तो फिर मैं गिटार का जो कॉर्ड्स मैंने ट्राई किया तो इधर स्लिप हो जाता है. ओके. तो इट्स अ प्रोफेशनल हैजार्ड. तो मैंने वैसे मुझे पसंद तो बहुत है, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो amazing international guitar players are my friends, as well as people here in India, people like Mark Lettery, who I've now made friends with, you know, people like Michael League, who's a bass player, but अब मैं मजबूर हूँ, मैं एक साज ही ठीक से बजाऊँ फिर उसके बाद. सो मतलब यू हैव बीन लुकिंग फॉर एक्सपेरिमेंटिंग, बट देन आपका जो एक्सपर्टीज है वही आपको अलाउ नहीं करता कि आप एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करें. नहीं, अभी वक्त भी चाहिए ना, यू नीड टाइम, यू नीड हेड स्पेस. आई एम trying to get as deep into this instrument, which is the sitar, and trying to do the best that I can with this instrument. तो इसके रिगार्डिंग मुझे क्वेश्चन है कि आजकल हम वी आर लिविंग इन अ टाइम ऑफ कंटेंट क्रिएशन. आर्टिस्ट्स, so called artists, are becoming content creators. जी. And they are creating content at their home, and then there are multiple retakes. We are not able to differentiate between what is genuine and what is live versus what is done with a lot of retakes and what is auto-tune and all those things. So what, according to you, would be the right path for the youngsters to focus more towards the organic art and genuine art instead of just the recorded art? Did you get my question? I did. I totally got your question. So अभी you're very right. अभी पूरी दुनिया 1.5 मिनट में चलती है. हाँ, अगर इंसान का बस करे तो एक रोटेशन ऑफ द वर्ल्ड दे वुड मेक इट इन 1.5 मिनट, सो दैट यू कैन टेक अ टाइम लैप्स एंड पुट इट ऑन इंस्टाग्राम. अब ये अच्छा है बुरा है ये हम लोग कोई नहीं है बताने वाले. ये सी देयर आर फोर्सेस विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, बट 1.5 मिनट का जो नीड है, दैट नीड इज नॉट टू बी जज्ड, बट व्हाट इज टू बी जज्ड कि ये 1.5 मिनट में आप क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं. तो आई थिंक एज अ कलाकार अगर आपको 1.5 मिनट में डिलीवर करना है, दो चीज़ें. एक तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको 1.5 मिनट में डिलीवर करना है, दैट 1.5 मिनट शुड बी वेरी मीनिंगफुल. और 1.5 मिनट में ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ पैकेज कर दें, लेकिन आप 1.5 मिनट में एक ऐसा झलक दिखाएं जिसमें कुछ जादू हो. तो क्या उससे आपकी आर्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाएगी कि जो एक इलेबोरेट फॉर्म ऑफ आर्ट है उसको कंप्रेस करना पड़ रहा है? अब दूसरी बात पे मैं आ रहा हूँ. यही आपने बहुत सही कहा कि मेरे पिताजी के जो गुरुजी थे पंडित निखिल बैनर्जी, ही यूज्ड टू से कि जो एक सफल कलाकार, जो सच्चा आर्टिस्ट है, वो 3 मिनट की बात करते थे. तब डबल था. वो बोलते थे वो 3 मिनट में वही इम्पैक्ट या वही इफेक्ट दे सकता है जो 3 घंटे में दे सकते हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, पहले ज़माने में वैक्स रिकॉर्ड्स बना करता था 45 सेकंड्स का. यू नो व्हेन द रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री स्टार्टेड, वैक्स रिकॉर्ड्स के बाद वाइनिल आया, जो हम वाइनिल अभी वापस आ रहे हैं, जिसको हम लॉन्ग प्ले LPs बोलते हैं. उसके बाद CD, LD एक एक करके आया. वैक्स रिकॉर्ड्स 45 सेकंड्स के होते थे. और आप अगर HMV के जो पुराने रिकॉर्डिंग्स है, HMV को हम लोग आजकल सारेगामा के नाम से जानते हैं, जो पुराने रिकॉर्डिंग्स हैं उनके आर्काइव्स में रिकॉर्डिंग है उस्ताद इनायत खान साहब की, इवन उस्ताद विलायत खान साहब की रिकॉर्डिंग्स है, सबके है. यू विल सी 45 सेकंड्स में दे यूज्ड टू प्ले वन रागा प्रॉपर्ली. यू वोंट मिस एनीथिंग. आई हैव नेवर हर्ड अबाउट इट. आप देखिए अगर मैंने आपको पूछा कि हु आर यू, आप कौन हो, तो आप ये जवाब मुझे 10 शब्द में भी बता सकते हैं, या 2 घंटे में भी आप, इट विल नॉट बी ओवर you describing who you are as a person. बात सही है कि नहीं? But it depends on who am I telling to. Exactly. Who is talking to me. Exactly. So here when we are talking in 1.5 minutes,
वी आर टॉकिंग टू एन ऑडियंस हु इज़ रेडी टू स्क्रॉल, या ठीक है। तो वो 1.5 मिनट में हम उनको अरेस्ट तभी कर पाएंगे जब वो 1.5 मिनट में हम 10 सेकंड भी कुछ मीनिंगफुल बोलेंगे तो वो 10 सेकंड के लिए वो रुकेंगे। सो द आइडिया इज़ नॉट टू क्रिएट 1.5 minutes packaged with everything you know, राइट but to have 10, 15, 20 seconds of magic. राइट हर कलाकार के परफॉर्मेंस में भी ऐसा है, जो आप बात कर रहे हैं, जो प्योर आर्ट फॉर्म फलाना ढिमकाना, एक राग 1.5 घंटा बजाना, उसमें भी एक 15-20 मिनट का मैजिक होता है टोटल। हाँ, जिसमें ऑडियंस वाह वाह करती है। एग्जैक्टली। बाकी क्या होता है, बाकी इट्स लाइक एन इमारत, बाकी एक आध रूम होते हैं जो एकदम देखने लायक है, उसको खड़ा करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। हाँ, राइट So that you have to focus. So the long and the short of it is you have to focus that you can make a structure in your performance that is rock solid, so that you can showcase that little gem. Right. So you are basically saying it's not going to ruin the art form. It's actually going to polish the art form because that's where it's coming from. अब इसका मैं नेगेटिवली तो बात नहीं करना चाहता हूँ, बट ये सच है, जो सच है वो सच है। नहीं मतलब 1.5 मिनट में अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स यू विल सी दैट देयर आर आर्टिस्ट्स हु कैन शाइन इन अ एडिटेड क्यूरेटेड कट अप 1.5 मिनट्स, हाँ, वही मैं बात कर रही थी। बट फिर वो हकीकत में नहीं शाइन। अब मेरा सवाल सिर्फ यही होता है कि आपने रील में जो गाया बजाया जो भी किया वो 1.5 मिनट में ही करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे सामने बैठ के भी करो। हाँ, वो सामने बैठ के नहीं हो पाता है, तो वो कैसे हम ला सकते हैं, क्योंकि अब तो वही ज़माना है, पीपल वांट टू गेट हिट ऑन द रील्स, तो उसी के लिए वो एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं। बट जब उन्हीं को लाइव में गाने को बोला जाएगा देन बेसुरा हो जाएगा, या फिर दे विल नॉट बी यूज टू दैट एनवायरनमेंट कि लाइव में कैसे परफॉर्म करें। तो हाउ डू वी कीप बैक to the live? Because you know what is happening in the effort to create that 1.5 minute, your core art form से भी ज़्यादा you are focusing on things like editing, which are job of other professionals. Right. You should ideally, if you are a fabulous great artist, और सच में अगर आपका जो कला है उसमें इतना जादू है, तो बेसिकली आप गा बजा डालोगे 1.5 मिनट की जगह, मान लो आपने 2 ही मिनट किया है, फिर बाकी काम एडिटर वगैरह को दे दो ना, वो काट के आपको 1.5 मिनट देंगे। ये काफी अच्छी बात बोली, मतलब जो आपका एक्सपर्टीज है उस पे रहना उससे चाहिए, उतना ही करो आप, और जिसका जो एक्सपर्टीज है वो करेगा, हाँ, editing जिसका करेगा। एडिटिंग का एक्सपर्टीज है उसको करने दो। आपने अगर सुर में नहीं गाया, आपको अगर ऑटो ट्यून का इस्तेमाल ये हद तक करना पड़ता है कि आपको उतना पैसा दे के ऑटो ट्यूनर बुला रहे हैं, तो आपको अपने आप से फिर मालूम पड़ेगा ना कि मेरे में ये कमी है, राइट। तो वो मत करो, उस हद तक आप जा ही नहीं सकते हो ना। सो व्हाट इज हैपनिंग इज नाउ a lot of young kids, they're trying to learn how to work with Melodyne to make themselves sound good. Nothing wrong with it, but if the ground reality hits you that मेरे को किसी I have to get a professional person to auto tune it, वो भी ट्यून कर करके बोल रहा है यार इससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा ऑटो ट्यून, फिर भी आप इट साउंड्स बेसुरा, तो आपको अगर उसको करने के लिए 50-60 टेक लेना पड़ रहा है, तो मतलब आप अनसक्सेसफुल हो। आप सीख के आओ फिर, भलाई सामने वाले को मालूम नहीं हो, लेकिन आपको तो मालूम होगा ना। बट लोग फिर भी ऑटो ट्यून करके भी पीपल आर गेटिंग देयर एल्बम्स आउट एंड देन दे आर बिकम सक्सेसफुल आर्टिस्ट। फिर लाइव शोज करके दे आर लाइक फ्लॉप, पीपल आर, उनकी पोल खुल जाती है ना फिर कि अब तो ये गा ही नहीं पा रहे हैं सामने। मैं तो ऐसे आर्टिस्ट जानता हूँ जिनका पूरा शो ट्रैक में होता है। हाँ, फिर वो ट्रैक पे करना पड़ता है, पूरा ट्रैक होता है, उसके ऊपर मर्जी हुआ तो कोई गा रहा है या बजा रहा है, नहीं मर्जी हुआ तो ट्रैक चल रहा है। तो इट्स लाइक लिसनिंग टू अ सीडी। बहुत सारे हैं, तो मैं हाउ मेनी नेम्स विल आई टेक? देयर आर मेनी पीपल एंड दे आर ऑन अ ट्रैक एंड देन दे हैव एंड इट्स आज नहीं, ये बहुत साल से चल रहा है। तो कुछ ऐसे लोग होंगे और कुछ लोग होंगे जो अनफॉर्चुनेटली, मैं आपको सच बताऊं तो कलियुग है ना, तो अब सच्चाई और ईमानदारी का वैल्यू थोड़ा कम है कंपेयर टू मे बी अदर। आई हैव नॉट सीन अदर योगाज, आई हैव हर्ड ओनली। तो चल जाता है, क्यों नहीं। मैं भी इनफैक्ट यही वर्ड यूज़ करती हूँ लोगों के सामने। लोग बोलते हैं कि ना ये कैसे सिंगर चल रहा है इतना, तो नहीं सुर में। मैंने कहा यही कलियुग है। हाँ, और क्या ये मतलब, बट द थिंग इज अब बहुत साल से चल रहा है, बट ओनली डिफरेंस इज, मैं आपको इस बात पे ज़रा इस डायरेक्शन में भी जाते हैं कि अब देखिए देयर आर मेनी वेस्टर्न पॉप स्टार्स हु ऑल्सो वर्क ऑन ट्रैक्स, बट उनका प्रोडक्शन होता है। एक 6 लोग बजा रहे, ट्रैक्स जो बना रहे हैं ना, उनका भी एबल्टन पे
लाइव एडिट्स चल रहा है, उसके ऊपर जो गा रहा है, जो मेन पर्सन है, जो मेन लाइक आई हैव हर्ड फ्रॉम, आई विल टेक अ नेम नाउ, आई हैव हर्ड फ्रॉम friends of mine who have worked for Madonna's show. Madonna, everybody knows. Yeah. Now, Madonna is such a hard-working artist that she rehearses with the live track in a manner that she creates an amazing production. कैसे होता है ये? उनके पास 4 लोग होते हैं जो एबल्टन पे काम करते हैं. Because the Ableton person is working live, it is not a CD being played, it's not a track on a pen drive जो लगा के घुसा दिया बज रहा है, उसके ऊपर चलो इधर सोलो आया, नहीं. उनका क्या है, 4 people are working on Ableton, they are in the moment working with the visual artist and creating live visuals and live and triggering different loops and different grooves, and it's all scripted and rehearsed. Yeah. But वो बन रहा है उसी वक्त पे. So And singer is singing live. And singer is singing live on it, and there is auto tune also, but it is happening live. Okay. So auto tune करने वाला जो बंदा है वो भी आर्टिस्ट है. So then there is some art in the whole process. आप कुछ भी करो, आप उस पर टाइम दो, मेहनत करो एंड क्रिएट समथिंग अमेजिंग, तो आप पब्लिक को उल्लू नहीं बना रहे हो. आप अगर पब्लिक को उल्लू बना रहे हो तो अब कलयुग में चल रहा है तो चल रहा है, पर दैट्स नॉट ऑनेस्ट टू द आर्ट फॉर्म, आई फील. Right. So now you have told my point कि honest art form कैसा होता है, तो I got my answer. Yes. So talking about your first time collaboration with Shiva Mani, who is a well-known rhythmist, I mean needs no introduction. अगर हम सितार की बात करें या वोकल म्यूज़िक की बात करें, किसी भी तरह के म्यूज़िक की बात करें, उसमें रिदम का क्या रोल होता है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि रिदम जिसको नहीं समझ में आता वो कभी कोई भी म्यूज़िक नहीं कर सकता. बिल्कुल. तो आप एक तो पहले लेट मी करेक्ट दिस वन, दिस इज नॉट माय फर्स्ट कॉन्सर्ट विद शिवा मणि जी. दिस इज क्लासिकल with Shiva Mani ji is happening for the first time. Okay. Now, Shiva Mani ji has very kindly agreed to feature as part of my band, which is classical. But मैंने काफ़ी बार उनके साथ बजाया है. मुझे याद है बचपन में, when I was in Calcutta, and this is probably in the 90s, he called me for the first time. Okay. उनका मैनेजर का फ़ोन आया. So this is part of also the story of my foundation and why. तो उस ज़माने में मैं कैलकाटा में रहा करता था. And Shiva Mani had become a big name at that time. उनका पहला वो क्लिनिक, ऑल क्लियर नहीं, क्लिनिक तो बाद में आया, उसके पहले भी ही वॉज अ बिग एट दैट टाइम ऑलरेडी. सो जब उनका फ़ोन आया या उनका मैनेजर का फ़ोन आया कि आपको बजाना है उनके साथ, इट वाज लाइक अ ह्यूज डील फॉर मी कि मैं इनके साथ बजा रहा हूँ, विच इट स्टिल इज़, आई एम स्टिल. तो मैं कभी कभी कंपेयर करता हूँ बिटवीन दैट डे एंड टुडे when we are doing a show at the Grand Theatre. I want to make this possible for other people, for my students. अब हमारा जो foundation है वो काम, me and my wife, we started a foundation, and the motto of the foundation is to bring people so that more and more people can play with people like Shiva Mani ji. And we have, in tomorrow's show, we have a couple of my students, Megha Raut, who's sitting right there, and Nastya on violin, who you will meet, she's coming soon. They are joining us on stage. Okay. And they already have amazing careers. They are already playing with some great people. Megha has been playing with Salim Sulaiman, and Nastya has been playing with Ranjit Barot, with everybody. So that's part of my journey. But anyway, coming back to Shiva Mani again, and to your question about rhythm, which I have not forgotten. See, आप खाना बनाएं तो उसमें नमक और मिठास, मैं शक्कर नहीं बोल रहा हूँ, because anything which tastes good needs a good balance between that edge of salt, fat and acid. So there's an acidic quality. Acidic quality is little sour. And salt and fat. ये 3 components. So तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है, या तो बटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, या तो घी का इस्तेमाल करना पड़ता है. There is नमक, and then the acid, मिठास बोले जो भी, मतलब you can describe it in whichever way, but these are the 3 elements of taste. ऐसे है rhythm, melody and harmony. ये तीनों चीज़ के बिना म्यूज़िक बन ही नहीं सकता है. मतलब आप जो बात कर रहे थे ना, अभी मैं उधर जा रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. अगर आपको सोयाबीन मैं दे दूँ, बोलूँ खा लो, खा तो लोगे, निगल जाओगे, लेकिन उससे टेस्ट नहीं मिलेगा. वैसे ही है, म्यूज़िक आपको सुनाई देगा अगर उसमें बहुत सुर में है लेकिन टाइमिंग सही नहीं है, तो बनता ही नहीं है. इट मेक्स नो सेंस. एंड सिमिलरली अगर सुर में है, टाइमिंग है, बट हार्मोनिकली, like harmony is a concept which is more there in the West,
बट अपना इंडियन म्यूजिक में भी देर इज हारमोनी विच इज़ अ लिटिल मोर सटल, वो दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन. बट ये 3 एलिमेंट नहीं रहे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, दैट्स ऑल. ओके, तो हारमोनी इंडियन म्यूजिक में भी आप हारमोनी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अब करना तो चाहिए, आप करते हैं या नहीं है ये अलग बात है. अपना जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है ना, उसमें बिकॉज इट इज़ मॉडल म्यूज़िक, राग संगीत जो कंटेंट है उसमें सिर्फ मेलोडी का बताया गया है, ठीक है. सो वी आर टोल्ड दैट दिस फ्रेज इज़ ओके इन दिस राग, दिस फ्रेज इज़ नॉट ओके वगैरह वगैरह. नाउ अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें फ्रेजिंग पे कि विच फ्रेज इज़ इंटरेस्टिंग, which phrase is a good choice and a bad choice, because right and wrong एक चीज़ है, but then there's good and bad choice, just good choice and bad choice. तो फिर आपको दिखाई देगा कि जो फ्रेज टेस्टी है, डिलिशियस है, वो फ्रेज में हारमोनी का झलक है. भला ही पीछे से कोई कीबोर्ड बजाए नहीं, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं अगर बजाए तो अच्छा लगेगा. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे यमन हम लोग गाते हैं, नी रे ग म द प ब रे ग, सो बोला गया प रे ग, ये कल्याण है, ये रहा ग्रामर. नी रे ग नी द प रे ग, इसका और एक ऑप्शन मैंने एक्सप्लोर किया. नी रे ग प म, ये हुआ एक हारमोनी चेंज हुआ. तो आप भला ही पीछे से ना सुने, लेकिन आपको सुन रहा है एक डा, सो दा डा डा, ये नी रे ग म प डा डा डा, मान लीजिए ये कॉर्ड बज रहा है विच इज़ अ नॉर्मल मेजर कॉर्ड, डा 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 डा, ये एक हारमोनी बज रहा है. ये किसी और इंस्ट्रूमेंट में बज रहा है, किसी और इंस्ट्रूमेंट में बज रहा है, कीबोर्ड में बज रहा है, भले हारमोनियम में बज रहा है. अब देखिए, अब लोग बोलते हैं हारमोनी नहीं है इंडियन म्यूजिक में, लेकिन हारमोनियम प्लेयर क्यों लेते हैं फिर सिंगर्स? हारमोनियम प्लेयर के बिना गा ही नहीं पाते. एक तो 4-5 तानपुरा लगता है उनको, और जोर से लगता है तो गला सुर में बैठता है. हारमोनियम उससे ऊपर से हारमोनियम लगता है और फिर सारंगी भी लगता है. सितार भी कुछ लोग लेते हैं. सितार तो खैर ख्याल, मतलब गायकी में उतना नहीं दिखाया जाता. आई हैव सीन मुकुल जी प्लेइंग विद सितार. अच्छा, एनीवे, तो मेरा बताने का मतलब ये है कि आप हारमोनियम क्यों ले रहे हैं? अगर आपको हारमोनी के से कोई लेना देना ही नहीं है, तो मतलब हारमोनी से लेना देना है. हारमोनियम प्लेयर आपको कभी कभी काउंटर पॉइंट बजा रहे हैं, कभी कभी नहीं तो एक नोट बजेगा ना, तो फिर वो अलग बात है. हमेशा वो और तानपुरा क्यों लेते हैं? तानपुरा इज हारमोनी, तानपुरा इज लाइक द बेसिस ऑफ हारमोनी. डंग 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 बज रहा है, टॉनिक बज रहा है, ड्रोन बोल के हम चला देते हैं उसको, लेकिन उसमें पानी सा क्यों हो रहा है? सब बज रहा है उसमें. तो उसमें एक हारमोनी बन रहा है. बट वोकल हारमोनी नहीं है, बस वोकल भी है. नहीं, वोकल हारमोनी तो अब वोकल के साथ हारमोनी आता है ना. हारमोनी इज समथिंग विच इज एन एड ऑन टू द मेन मेलोडी. तो हारमोनी कुछ इंस्ट्रूमेंट में, जो हार्मोनिक इंस्ट्रूमेंट में, उसी में बज सकता है ना. अब वोकलिस्ट 3 नोट एक साथ नहीं लगा सकता है, मोस्टली तो नहीं लगा सकता है. हालांकि देयर इज वन वोकलिस्ट कॉल्ड लाला हैथवे हु कैन सिंग 2 नोट्स एट द सेम टाइम, बट ऐसे बहुत कम ही लोग हैं. ओके, हारमोनी में बोलते कि अगर कोई सिंगर गा रहा है, उसके सपोर्टिंग वोकलिस्ट कैन सिंग हारमोनी अलोंग विद हर और हिम. हाँ, वो कॉयर, उसी को तो कॉयर बोलते हैं. उसी को बोलते हैं कॉयर. में हम उतना नहीं देखते. हाँ, क्लासिकल में नहीं, अभी तक शायद नहीं. करना ही चाहिए, क्यों नहीं. तो जो फर्स्ट टाइम लिसनर, अगेन आई एम कमिंग बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्ली वी विल एंड इट विद दिस. जो फर्स्ट टाइम लिसनर्स हैं क्लासिकल म्यूजिक के, फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू बिलीव कि जो अपकमिंग जनरेशन है उनको क्लासिकल म्यूजिक में जाना चाहिए, सुनना चाहिए, एटलीस्ट फेमिलियर होना चाहिए? और अगर येस, तो उनको किस तरह के म्यूजिक से शुरुआत करनी चाहिए? शुड दे लिसन टू, in my definition, pure classical music, or should they start with more palatable, more consumable music, which अब is, देखिए अभी का जो, वो तो बोरिंग समझते हैं उसको, तो कैसे करेंगे? सही बात है, आपने समझ के बारे में तो सही बताया. बट अब देखिए, अब के जो आपका जो टाइम है, इस टाइम पे हम लोग बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, हम लोग बोल रहे हैं अपना जो संस्कृति है, भारत, इंडिया को भारत बोल रहे हैं. तो अगर आप इतने गर्व के साथ, जो कि अच्छी बात है, गर्व के साथ अपना देश, अपना धर्म सब इतना फैला के दिखा रहे, तो अपना जो संस्कृति है या जो संगीत है उसको भी दिखाना चाहिए. तो मैं तो पहले मानता हूँ कि ये सवाल तक आना ही नहीं चाहिए. ये सवाल तब बंद हो जाएगा कि क्या सुनना चाहिए, अरे यार वो तो बोरिंग है, वो बंद हो जाएगा जब आपको स्कूल में पढ़ाई करना पड़ेगा इसके. व्हेन इट विल बी मेड कंपल्सरी इन स्कूल्स, व्हेन किड्स विल नॉट आस्क इज दिस अ तानपुरा और अ सितार. हाँ, कुछ लोग सितार को वीणा बोलते हैं. सितार को वीणा बोलते हैं. तो ये आप वेस्ट में जाओगे तो ऐसे नहीं मिलेगा. आप कहीं पे भी जाओ
जो मान लीजिए इफ़ यू गो टू ओक्लाहामा विच इज़ अ small state, it is in somewhere in the middle of America, but if you go there and you say what is a cello, what is a viola or a violin, क्योंकि उनको स्कूल में पढ़ाया जाता है, so it should be part of our school curriculum, because not because ज़बरदस्ती किसी को you have to put it down somebody's throat, but because फिर आप history क्यों सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं कि this is आप constitution क्यों सिखा रहे हैं, why are you saying this is the Indian constitution, क्यों सिखा रहे हैं, आप बोलिए ना, why are you saying that फलाना in 1629 फलाना person came and conquered and ये हुआ था, and why are you teaching your kids this, why to tell them, to give them a sense of self identity कि भाई हमारे देश में हमारे कल्चर में ये हुआ था, you are carrying forward that खून is inside you, तो संगीत भी तो चल रहा है ऐसे अंदर, that is part of who you are. क्योंकि करियर नहीं दिखता ना लोगों को म्यूजिक में, अब दिखने लगा है, लेकिन पुराने टाइम में इसलिए म्यूजिक नहीं सीखते थे स्कूल में क्योंकि क्या करेंगे सीख के। हाँ, जिनका family करियर history जो लोगों को म्यूजिक में करियर नहीं दिखता था, उन लोगों को बाकी चीज़ में भी करियर नहीं दिखता था। मैं आपको सच बताऊं, उनको सिवाय किसी का 10 से 5 बजे का नौकरी करने की आदत है। इंडियन लोगों को अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश ने ऐसा प्रोग्राम करके गए, ब्रिटिश लोग, कि तुम लोग किसी और के लिए नौकरी करोगे, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश के लिए करते थे नौकरी। So it was programmed into our system that you will do a 10 to 5 job, it will be pretty safe, आपको सैलरी मिल जाएगी, अपना मत सोचो, दिमाग मत लगाओ। इसीलिए इंडिया से निकलता है, यूएस में जाके पेटेंट लेता है, दिमाग लगाता है, सब कुछ करता है, लेकिन इंडिया में जब तक रहता है, इधर का माहौल बना हुआ था ट्रेडिशनली, अब चेंज हो रहा है जैसे आपने बोला। सो म्यूज़िक में करियर हमेशा था, नहीं तो पंडित रविशंकर का करियर कैसे बना, इतना अच्छा इंटरनेशनल करियर बनाया उन्होंने। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का करियर कैसे बना है, पंडित शिव कुमार जी का कैसे बना, मोहम्मद रफ़ी साहब का कैसे बना, किशोर कुमार जी का कैसे बना, था करियर तो था म्यूज़िक में। अब सब लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए कुछ भी नहीं है। अब सब डॉक्टर सक्सेसफुल होते हैं क्या? सो इट्स अप टू यू, बट यू कैन मेक गुड मनी फ्रॉम म्यूजिक, यू ऑलवेज कुड। अब फिल्म इंडस्ट्री इज सपोर्टिंग सो मेनी पीपल इन बॉम्बे, पीपल गो एंड प्ले इन सेशंस एंड मेक अमेजिंग मनी। अभी नहीं, पहले और बनाते थे, अब तो VSTs आ गए। कितने साल सीखना पड़ता है किसी सिंगर को बिफोर मेकिंग मनी? अब आप, ये बहुत लोग पूछना चाहते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स। हाँ। इसमें भी जैसे मैंने बोला, नमक और अपना फैट, सॉल्ट, फैट एंड एसिड, 3 कंपोनेंट होता है। टैलेंट, टाइम एंड फोकस, ये 3 कंपोनेंट से डिटरमिन होता है। आपके पास टैलेंट थोड़ा कम हो सकता है, इट्स फाइन, थोड़ा कम, नॉट बिलो जीरो इज नॉट गोइंग टू वर्क। थोड़ा कम टैलेंट, आपके पास बहुत मेहनत होगा, कम टैलेंट होगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम में आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। बहुत टैलेंट, कम मेहनत, तो भी उतना ही टाइम लगेगा, शायद थोड़ा इधर उधर हो सकता है। और मिड लेवल टैलेंट या हाई टैलेंट, हाई डेडिकेशन, तो बहुत कम टाइम में रिजल्ट दिखेंगे, सिंपल। ये काफ़ी अच्छी बात बताई है आपने। सो वी विल कंक्लूड विद दिस क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछती हूँ कि व्हाट आर यू वर्किंग ऑन नेक्स्ट, व्हाट इज समथिंग दैट यू वांट टू इम्प्रूव इन योर आर्ट एंड यू आर चेजिंग? सो मेरे को एक आई एम गोइंग थ्रू अ फेज वेयर आई एम रीथिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज I don't want to become part of the rat race where people are under constant pressure to produce something new, and come up with, push the boundary, constant and more than pushing the boundaries, because you can't push boundaries every day. आपको फील होता है ये चीज़ कि हाँ, एक अभी this is one of the things which are a reality it's one of the malaise of social media, I would say, that everybody is forced to say all the time that I'm happening. मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी है, ये देखो, मैं अभी इधर से आया, उधर से मुझे ये मिला, मैं उधर जा रहा हूँ, ये है एक ट्रेंड। सो I've taken that pressure for a while now. That pressure is not entirely a bad thing, because that made me produce, like, I'm sitting on like 5 or 6 albums which I've, like, they are वो बोलते हैं ना, ready to fry, उस पोजीशन में है। किसी में थोड़ा एक इंग्रेडिएंट डाल के ख़त्म करूँगा, बट वही लास्ट स्टेज में मैं रुका हुआ हूँ। There is one album, I think the immediate one which is going to come out is something that I've done
it's very interesting. I don't want to give it away, but that is ready. It's done and it's showing what all is possible with a sitar. एक ही एल्बम में. तो उसका एक अच्छा नाम भी हमने सोचा है और आप वो नाम बता सकते हैं? नाम ज़रूर बता सकता हूँ पर नाम बताने के लिए एक बार और मिलूंगा आपके साथ. उस टाइम पे नाम रिवील होगा. उस एक्चुअली आई वुड हैव रिवील द नेम बट आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट. आई एम 99.9% श्योर. I totally get it. I don't want to give out one name now, but it's So done. social media pressure has helped you produce your album, you can say that. Social What are the media- negative sides of it? Social media pressure has helped me produce my album, but the realization of social media album has helped me not release it with too much जल्दबाजी. Right. तो मैं थोड़ा रुका हुआ हूँ. ये एक एल्बम मुझे रिलीज करना है. बाकी मैं 4-5 और एल्बम पे काम कर रहा था. सब मैंने बैक बर्नर पे रख दिया है. अब थोड़ा सोच समझ के थोड़ा मेरा टूर है, यूएस का टूर है एक सितंबर में. उसके बाद सोचूंगा. तो आप खुद प्रोड्यूस करते हैं? You have No, a I team of have. producers. There's a very talented guy called Nakul Chugh. He's Okay, also become an Instagrammer. Yeah, I've seen Nakul Chugh. श्रेया जैन के साथ And जो श्रेया करते हैं, जैन के हाँ. साथ 1.5 मिनट में वो भी गाने रिलीज करते हैं हाँ. आजकल. बहुत अच्छा काम करते हैं. And so he works. He's a very talented Okay. music producer and so he works with me. I have several other people. There's a very talented slide guitar player called Amritanshu जिनका अभी रागा फ्यूजन करके उन्होंने बैंड आई थिंक अमृतांशु जो क्लासिकल गिटार हाँ वो बजाते हैं. प्रोडक्शन भी करता है बहुत अच्छा. आई थिंक इंडियाज गॉट टैलेंट में वो लोग गए और वो लोग जीते भी. आई थिंक रनर्स अप और समथिंग. तो वो भी कभी कभी हेल्प्स मी विद प्रोडक्शन. सो जब जो एल्बम है उसका फील जैसे है उस हिसाब से समटाइम्स पीपल फ्रॉम अब्रॉड. सो दैट्स वेयर आई एम इन दैट प्रोसेस वेयर आई एम थिंकिंग जो मेरे दोस्त लोग हैं बाहर के उनके साथ. बिकॉज अभी क्या है अभी इट्स अ ग्रेट थिंग वेयर एवरीबडी इज कोलैबोरेटिंग विद एवरीबडी. तो अब आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई ओन वॉइस. तो काफी अच्छी बात बोली आपने मतलब कोलैबोरेशन को रिगार्डिंग. इनफैक्ट आई रन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर वी टीच अपकमिंग म्यूजिक क्रिएटर्स बिकॉज इफ यू आर अ singer or instrumentalist, you're not enough. You have to learn the production in order to be out in the market. जी. So production की art, mixing, engineering, ये auto tune ये सब आपको आना चाहिए to be presentable to the audience. तो just final words for the upcoming singers and musicians कि किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए and किन पे ज़्यादा करना चाहिए किन पे कम करना चाहिए to be a successful artist. ये बहुत ही आपने ऐसा सवाल किया कि हर कोई सब कुछ मुझे करना चाहता बहुत है. मुसीबत में आपने डाल दिया. मैं चाहती हूँ आपको बिकॉज डालना. I am caught between trying to sound like one of those बुड्ढे and trying to sound like a wannabe. So I'll take the middle path. मुझे ऐसा लगता है कि अब म्यूज़िक इंडस्ट्री के जितने फैसेट्स हैं एज अ यंग सिंगर और यंग म्यूजिशियन you must learn a little bit about every facet, including the business of the music, which we have not spoken about. We haven't. In Berklee School of Music, there's a course where they teach you how to conduct business, how to write contracts. Business से लेके, production से लेके, post production से लेके, editing, Melodyne, और using plugins, सब कुछ के बारे में जानकारी ज़रूरी है. लेकिन the proportion is this and this. Right. आपका जो बहुत ज़रूरी है. core art है, are you a sitar player? Are you a singer? Are you a music producer? अब जो music producer है, वो composer नहीं है. But आजकल हर कोई सब You कुछ सुन रहा है. you should get this into your head that my forte. No, you can be a composer. उसमें क्या है? मैं तो कितने लोगों को जानता हूँ जो कमाल का गाते हैं, but their music like they are kind of composers or arrangers or चाहे तो गा सकते हैं. But this you should know this is my strength. बाकी आप सब कुछ करो. आप एक एल्बम में कहीं कर दिया. आप सुल्तान खान साहब, उस्ताद सुल्तान खान साहब, उनके गाने बॉलीवुड में हिट्स हो गए. बराबर. बट इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो सारंगी छोड़ के गाना गाने लगे. करेक्ट. बिकॉज ही नोज दैट ओके आई कैन सिंग अमेजिंग, आई एम यूनिक, बट सारंगी मेरे जैसे कोई नहीं बजा सकता. तो ये मालूमात होना बहुत ज़रूरी है. आजकल के जितने लोग हैं वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं. क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, यही पीयर प्रेशर वाली बात है. आज कुछ करके देखते हैं, उसमें थोड़ा सक्सेस मिल गया, फिर कुछ दिन तक करते हैं, फिर कल वो थोड़ा उतना सक्सेस नहीं मिला. ऐसा दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ. पहले लोग पीपल यूज टू एक्सेप्ट इट कि भाई ठीक है आज मिल रहा है, कल नहीं मिल रहा है, परसों फिर से मिलेगा. तो अब इम्पेशंस आ जाता है कि अच्छा शायद ये नहीं है, अच्छा वो अभी सब इन्फॉर्मेशन मिलता है बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग. आपको पता चलेगा कि पड़ोसी
मैं माइक्रोफोन लेके गाना गा रहा हूँ तो पड़ोसी बकेट ऐसा लेके गाना गा रहा है, तो आप वो कल वो ट्राई करोगे, तो ये कंपैरिजन। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, यू डोंट हैव डेवलप द गट्स टू गो डाउन वन पाथ द फुल वे। आधा अधूरा जाके आप जज कर देते हो कि नहीं नहीं वो दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी। यही तो हैविंग पेशेंस, हैविंग अवेयरनेस जी। and knowing yourself ki what is your strength and what is your weakness, and then Correct. not being too but convinced. having a general awareness about Yeah. everything, but main चीज है, if I have to summarize this into one sentence, I would say आत्मविश्वास. You should keep some faith in your own ability. You should keep some faith in the path that you are going on. एक हद तक जाके देखो, तभी मालूम पड़ेगा. That's what you have done, and this is very That's what I continue to do. At the same time, I do things that I like. कल को अगर लगा कि नहीं मुझे ये करने का बहुत मन कर रहा है, पूछो अपने आप को, पूछो कि ये मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा हूँ या ये बहुत मुश्किल सवाल होता है कि अपने लिए कर रहे हैं, ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। जी आपको फील हुआ है कभी ये कि ऑडियंस के लिए कुछ चीज़ करनी पड़ रही है बट होता आपका ही करने का मन नहीं है? ऑफ कोर्स आज भी होता है. आप करते हैं? अपनी आपको मैं खुद को ये सवाल करता हूँ या अच्छा। आपने जो सवाल मुझे किया मैं खुद को करता हूँ. अच्छा, तो क्या डिसाइड करते हैं फिर आप? अब कभी कभी ये डिसीजन भी लेते हैं कि अब बहुत मन कर रहा है कि ऑडियंस को खुश करूं. हाँ। तो तब वो करते हैं कि जिससे ऑडियंस खुश हो जाएगी. बट 90% ऑफ द टाइम यू कांट मेक द ऑडियंस हैप्पी टिल यू मेक योरसेल्फ वेरी हैप्पी. हाँ, तो इफ यू आर एंजॉयिंग योर परफॉर्मेंस, तभी ऑडियंस जाके विल वो एंजॉय। नहीं तो उनको लगता है आपको बीइंग अ गर्ल, आर यू हैप्पी विद अ गाय चीजिंग यू लाइक क्रेजी एवरी डे सेइंग चलो लेट्स मीट, और are you happier when that person is very happy in their space and they are, so that is more attractive when you are really in your own space and own zone and you are doing what your heart says. I think So what's that's the much more best thing attractive. happened in any concert? I'm going beyond this scheduled thing, but then बातों में हो जा रहा है. What's the best thing? Best thing happened during a concert with an audience or with your co-artist. मैं आपको बताऊं, एक बड़ा फिलोसॉफिकल लेवल पे मैं बताता हूँ. अब ये हाल ही में मैंने ऑब्जर्व किया है, some of the best things that have happened in some concerts, I have felt this, is मैं समझ गया कि इतने में मुझे संतुष्टि मिल गई. हाँ, मुझे ऐसा लगा कि ओके आई कैन डू अ लिटिल मोर बट आई एम क्वाइट हैप्पी बीइंग हियर. एंड वो जो एक इट्स लाइक ईटिंग फूड. हाँ, आपको लालच तो बहुत है खाने का, दिख रहा है खाना एकदम ज़बरदस्त है, साउंड अच्छा मिल रहा है, मतलब आप बजाओगे तो शायद और थोड़ी सी तालियां मिल जाए आपको. लेकिन मैं रुक गया, मुझे लगा कि ठीक है अब आई एम हैप्पी, दे आर हैप्पी, इधर ही रुक जाते. ये दिस जोन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जोन टू बी इन, वेयर यू पुट डाउन योर इंस्ट्रूमेंट एंड यू से बस आज के लिए इतना ही. And you knew that you have achieved that state कि अब मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ. अब हाँ. वो स्टेज बहुत स्लिपरी स्टेज है. अब वो है कि आप एक दीवार ऐसा यू आर ट्राइंग टू स्केल द वॉल, वो आपको बीच बीच में झलक मिलता है, तो फिर थोड़ा गिर जाते हैं, फिर लगता है थोड़ा इनसिक्योरिटी. सब हम लोग भी इंसान हैं, कभी कभी आता है कि बाजू वाला फाड़ डाल रहा है, ऐसा बजा रहा है कि ऑडियंस इज लाइक गोइंग क्रेजी, तो मैं भी करूँ. ऐसा होता है आपके साथ? हाँ, I mean, as I They're said, we're human beings. all human beings. We've gone through all of this, but it's the realization, and see, once you've seen a झलक of that, शायद इसी को तासीर कहते हैं कि you see a झलक of that piece and then you back off. You know कि अभी ठीक है. That's a beautiful answer. Yeah. So you know that you have achieved there, you have reached there, and now you have to stop. जी. कि अब मेरा पर्पस पूरा हो गया है. जी. And what's the worst thing that has happened on a stage? You can talk about it. Well, literally the worst thing that has happened to me. Two instances I can remember. एक बार मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक बजा रहा था, ये बहुत साल पहले की बात है, कैलकाटा में. There was some corporate event where I was playing just electric. I didn't take. बहुत यही peer pressure की बात है. मेरे को fascination था कि मैं इलेक्ट्रिक बजाऊंगा, overdrive, distortion. कुछ किया ऐसे. जो मेरा प्रोसेसर था, एक बड़ा प्रोसेसर था मेरा, उसका जो पावर कॉर्ड था, पावर कॉर्ड का एक एंड लूज था. अच्छा, वो जो इंजीनियर ने लगाया था पावर कॉर्ड का, जहाँ पे जंक्शन था वो दूर था मेरे से, बीच में बंद ही हो गया, निकल गया वो. And you're playing. एंड आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट गेटिंग एनी साउंड. तो मुझे पूरा बैंड को रोकना पड़ा. somebody came and put some tape. So that is as embarrassing as it gets. एक बार हुआ ऐसा मेरे साथ. और एक आध बार ऐसा हुआ है, and this is very like human, हाँ,
कि आप बजा रहे हो ऐसे कॉन्सर्ट में जहाँ बहुत सारे पार्ट्स आपको याद रखना पड़ेगा एंड द होल बैंड इज डिपेंडिंग ऑन यू एंड एट अ सर्टेन पॉइंट यू ब्लैंक आउट होता है ब्रेन फ्रीज तो ऐसा भी एक आध बार हुआ है बट फॉर्चुनेटली दैट वन आई गॉट आउट ऑफ बाय sort of I think you need to kind of there is a moment between you thinking of the phrase and playing it when you're thinking of the phrase there is just a split second उस moment में you feel like a blank and then you have to just say okay now let the moment arrive I'll figure out if I am not able to remember the original part I'll make up something तो उतना मेकअप करते करते वो याद आ गया फॉर्चुनेटली ऐसा 2-3 बार हुआ है मेरे साथ So that's because of all कोई ना your कोई ऐसा practice. लगता है कोई कान में आके बता के जा रहा है ऐसा लगता है आपको? Okay, so with this we can we'll conclude our conversation. Thank you so much. So last advice to our youngsters, our content creators, music creators. What last one-liner tip that you will give them, and with that we will conclude. So I think again I will stress on the importance of focusing on your core skill set. Try to ask yourself what is my forte? What is the one thing that I am unique for? वो सवाल बार बार अपने आप से करो अपने आप से जवाब मिलेगा और क्लासिकल लिसनर्स को आप क्या बोलेंगे किस तरह का म्यूजिक वो सुने ताकि उनकी समझ अच्छी बने और अच्छे आर्टिस्ट को सुने लाइक व्हाट डू यू वांट टू से टू लिसनर्स सब सुनो अपने आप ही मालूम पड़ेगा आपको क्या अच्छा लगता है अच्छा बुरा का जो पैरामीटर्स है ना वो सबके लिए अलग है तो आप सुनो और आपको क्या अच्छा लगता है वो देखो Okay, fantastic answer. So thank you so much. Thank you very much. Thank you. It's been a pleasure. Coming to my chat and same here. Thank you so much. मेरी तरफ आता हर गम फिसल